Am I audible? Can anyone confirm in chat section? Audio, video is everything clear. So, hello everyone, welcome to this session. My name is Rich Amratia and I secured All India rank 67 in GATE CS and All India rank 311 in GATE BA with final year of my BTech. And this was my second attempt. In my first attempt, I secured All India rank 4000, somewhere in 4000 in GATE CS and somewhere around 6.5 thousand in GATE DA. So that's the quick introduction about me. Okay, so let's begin this. First of all, I request you all to please put your real name as a display name so I can address you whenever you are whenever you are asking any doubts or we are discussing anything. So BS or uh, whoever joined with some mobile. Okay, you can change your name and you can put your real name. One by one, we can discuss. We can discuss with you whatever your current preparation stage and which subjects you have completed and what's your current overall process. Okay. Okay. So let's begin the session. Whoever have doubts, you can raise your hand, and if you are not able to speak or you are in such a place you can't speak, then you can put your doubt in chat section also. Okay. Let's begin this session. First, hello. So first, BS has some doubt. Did you maintain short notes for every subject? Yes, I maintain short notes for almost all the subjects. Maybe I have not created short notes. I forgot, but I have not created one or two. I have not created short notes for one or two subjects. Either I have created rest of all the subjects. Okay, so next. Salman has doubt. 2 days back, I have enrolled in this course, and can you please tell me roadmap like which subject should I do first? Okay. Salman, first of all, can you confirm like are you targeting to get 2027 or get 2028? Like you are in third year, fourth year, what's your status? Okay, you are targeting 2027. So maybe I guess you are either in fourth year or maybe you are low profile. Okay. So if you are starting from current time, so I would suggest start from engineering mathematics. That should be your very first subjects in GATE CS preparation. So start with engineering mathematics, then you can go for C language, and during C language you can start discrete mathematics parallelly. As per my suggestion, don't start discrete mathematics alone. Like you can take two subjects parallelly. One is discrete mathematics and another subject is any other subjects. Okay. So first start with engineering mathematics, then go for C language. Once you complete C language, then go for digital logic. And after digital logic, you can either start data structures or you can either start computer organization and architecture part. Okay. So that should be your order. And then after, once you complete data structures, then only you can go for algorithms. And once you complete computer organization, then only you can go for operating system. So that should be the order. Like first you can go for engineering mathematics, then C language, then digital logic, then computer organization part, then data structures, algorithm, and operating system. And if I consider DBMS, so you can do DBMS like
at any position, but as per my suggestion, you can do after COF. Once you complete computer organization part, then you can go for DBMS, and then you can go for operating system. Okay, and then we have some another pool, which is theory of computation, computer networks, and compiler design. So in that pool, almost computer network is independent subjects. You can do this that subjects at any point. And for compiler design, theory of computation is prerequisite for compiler design. So you have to do theory of computation first, then you can go for a compiler design. So that should be order for those two subjects. And maybe I think all the subjects is covered. And with all these subjects, you can parallelly do discrete mathematics, because comparatively discrete mathematics is a little bit uh, big subjects. So you can't do yet any, like in one go you can't do all complete discrete mathematics. So my suggestion is do discrete mathematics as a part of, yeah, like three or four individual chapters, like graph theory or group theory or etc etc. Okay, so like, yeah, that's the like overall uh, sequence of subjects you can go for get CS. Okay, so next we have Ritesh. He has asked, can you tell a detailed plan for dropper student? Okay, so since you are dropper, you have like almost all the day for your get preparation. So like you don't have college or you don't have any projects or etc. So as a dropper student, first of all, find out which mistakes you have already did in your previous attempt. Either like if you have already attempted KCS in your fourth year or in your third year, any year. So first of all, find out which are the mistakes you have did in your previous attempts. So and start working on that. Like suppose you didn't have you don't have to any better revision, or you you don't have any better plan for short notes, or you don't have better plan for PYQs or test series. So start work on it. And as a other part, अगर मैं बताऊँ तो पहले तो मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो। ट्राई करो कि सितंबर और ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो मैं मतलब ऐसा मान सकता हूँ कि आपने ऑलरेडी मतलब कुछ तो मतलब सब्जेक्ट्स किए होंगे। अगर आपने पहले भी अटेम्प्ट दिए हैं गेट सीएस के, तो आपने कुछ कुछ सब्जेक्ट तो किए होंगे। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके अभी बाकी है वो उसको पहले कंप्लीट करो, and then go for revision and PYQ phase, and then go for test series phase. So in revision phase, you have to make short notes with your revision days. So at that time, make short notes and then go for PYQs. And after completing PYQs of particular subjects, then you can go for test series. Start with topic wise and subjects wise. So this all the uh, plan, I would say, try to complete in maybe starting of January, or if you are comfortable, then you can. If you are push yourself, then you can complete mid December also. So after that, go for mock test and your final revision phase. So that should be the ideal. What can I say? Ideal workflow of dropper students. Okay, so yeah, that's the overall workflow. Next we have Ritesh. Ritesh, I'll unmute you. You can ask your doubt directly in. हेलो। Hello. हाँ सर, मैं मतलब आप सुन पा रहे हैं ना सही से? हाँ 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 हाँ, यू आर ऑडिबल। हाँ। तो सर, मैंने अभी ड्रॉप लिया है और पिछली बार भी मैंने गेट दिया था, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई किया था 32 मार्क्स से। और वो भी सिर्फ
एप्टीट्यूड और सी एंड डेटा स्ट्रक्चर्स वो थोड़ा सा टेलीग्राम से कहीं से पढ़ लिया था। तो इस बार मैंने गो क्लासेस का लिया था कोर्स अभी मार्च में। और तब से मैंने ये लिनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स एंड सी प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल लॉजिक ये कवर कर लिए। अब ये सब्जेक्ट तो मैंने कवर कर लिए, लेकिन इनके पीवाईक्यूज भी मैंने कर लिए। लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये जो प्रीवियस सब्जेक्ट के वो भूल रहा हूँ। जबकि मैंने पीवाईक्यूज किए, उनके क्विजेस भी दिए और अच्छे भी गए, उनको एनालाइज भी किया है। लेकिन फिर भी अगला सब्जेक्ट करते वक्त लगता है कि वो मैं कुछ पिछला भूल रहा हूँ। ऐसा मतलब वो मेस्ड अप हो जाता है सभी, और मैं एक्चुअल फ्लो नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अ, और हाँ, यही था। ओके, सो ये जो आपका पहला प्रॉब्लम है कि आप अभी मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट्स कर रहे हो और आपने जो जो भी सब्जेक्ट्स पहले किया हुआ है उसका आपका मतलब थोड़ा आप भूल जा रहे हो वो अगले सब्जेक्ट्स को। तो वो लाइक क्वाइट नॉर्मल है, वो सभी के साथ होता है। मतलब कोई भी गेट एस्पिरेंट, आप मान लो कोई भी गेट एस्पिरेंट है गेट सीएस के, तो उस उसके साथ यह प्रॉब्लम हुआ ही होगा कि आज वो कोई भी सब्जेक्ट कर रहा है, तो उसके उसने जो भी सब्जेक्ट 1 या 2 महीने पहले किया है वो उसको मतलब अभी इतना याद नहीं है जितना पहले वो हुआ करता था। तो वो एक क्वाइट नॉर्मल प्रॉब्लम है। अगर उसका सॉल्यूशन है तो वो एक ही चीज है, वो है रिवीजन। आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना होगा। लाइक कोई भी सब्जेक्ट्स के टच में आपको रहना है तो आपको टाइम टू टाइम उस सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना होगा। अभी मान लो कि मान लो कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट किया है और अभी आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हो, तो आप हर बार पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी नोट्स में से रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि लाइक वो सब्जेक्ट्स काफी बड़ा है। उसको रिवीजन करने के लिए भी आपको लाइक अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको मतलब 1-2 दिन चाहिएगा रिवीजन करने के लिए। अगर मान लो कि आप दो 2-3 बार आपने कर लिया और आप वापस से रिवीजन कर रहे हो, तो फिर भी आपको कुछ कुछ बड़े सब्जेक्ट्स के लिए एटलीस्ट 3 या 4 आवर तो चाहिए ही चाहिए रिवीजन करने के लिए। अगर आप अपनी एनोटेटेड नोट्स या कोई टॉपर्स के नोट्स या अपने खुद के नोट्स से कर रहे हो तो, बट इस टाइम पे आप अपना टाइम बचा सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स से। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाई है तो आप वो पूरा का पूरा जो रिवीजन का टाइम है वो 1 या 2 घंटे में आराम से कोई भी सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओगे। क्योंकि लाइक मोस्टली क्या होगा शॉर्ट नोट्स में आपके 15 या 20 पेज में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। जो भी मेन मेन टॉपिक है, पॉइंट है, डेफिनेशन है, फॉर्मूलाज है, जो कुछ भी आपने मेंटेन किया होगा, तो वो पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा आप शॉर्ट नोट्स में से। तो टाइम लाइक रेगुलरली उसको रिवाइज करते रहो। मान लो कि आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज और उसके जो भी पॉइंट वाइज आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो उसको लाइक मंथली थोड़ा रिवाइज कर लो, या 15-20 दिन में एक एक बार ऐसे ही देख लो कि मतलब थोड़ा मतलब याद है या नहीं, ये सब मतलब चेक कर लो। तो उस तरह से रिविजन रिवाइज करते रहोगे तो वो आपको जो मतलब पुराना सब्जेक्ट्स भूल जाने का जो प्रॉब्लम है वो इतना ज्यादा मतलब आगे नहीं आपको फेस होगा। इसलिए मेरा स्ट्रांगली सजेशन यही है कि शॉर्ट नोट्स बनानी शुरू कर दो और उसको फॉलो करो। अगर मान लो कि आप आप मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ या मतलब वो पूरा का पूरा एनालिसिस करो कि क्या शॉर्ट नोट्स में लिखना चाहिए क्या नहीं, तो ऑलरेडी गो क्लासेस के प्लेटफॉर्म में भी मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट ने शॉर्ट नोट्स शेयर किए, तो आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो। ओके ओके सर। और सर, मतलब मेरा एक भी और डाउट था। जब आपने बोला कि वो 15-20 दिन में वो सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स या फिर उसको रिवाइज करना चाहिए, तो उसको सिर्फ उसके नोट्स देखने चाहिए या फिर पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज करना चाहिए या फिर उसके टॉपिक टेस्ट के थ्रू या फिर डीपीपीस के थ्रू, ऐसा कुछ? ओके, तो मान लो कि आपने कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपने उसके पीवाईक्यूज किए, तो जब भी आप उसके पीवाईक्यूज कर रहे हो तब आप थोड़ा मतलब नोटिस करो कि मतलब मान लो कि आप डीबीएमएस अभी आप रिवाइज कर रहे हो और अब आप उसके पीवाईक्यूज कर रहे हो डीबीएमएस के। तो मान लो कि आप
का जो एसक्यूएल वाला पार्ट है वो आपका एकदम क्लियर है, उसमें आपको मतलब फुल ग्रिप है और उसके पीवाईक्यूज आपको आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। और मान लो कि आपका जो ट्रांजैक्शन वाला पार्ट है उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है और उसके पीवाईक्यूज आपको आपसे इतने नहीं हो रहे और आपको थोड़ा रेफरेंस चाहिए होगा, या गेट ओवरफ्लो पे आपको आंसर्स पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे करके पहले टॉपिक ऐसे फाइंड आउट करो कि किस टॉपिक में आपको पीवाईक्यूज में दिक्कत आ रही है और किस टॉपिक में नहीं आ रही है। अब जब आप रिवीजन कर रहे हो तो मान लो कि कोई ऐसा टॉपिक आया कि जिसमें आपके पीवाईक्यूज इजीली हो रहे हैं, जैसे कि आपके लिए हमें मतलब एग्जांपल लिया था एसक्यूएल का। तो मान लो कि हाँ। एसक्यूएल का आप रिवीजन कर रहे हो और उसका पीवाईक्यूज आपसे इजीली हो गया था जब आपने पहली बार पीवाईक्यूज किए थे, तो फिर आपको वहां पे मतलब फिर से पीवाईक्यूज या कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ सिर्फ जो भी आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा है एसक्यूएल के रिलेटेड, वो आप एक बार रिवाइज कर लो, तो आपका मतलब एसक्यूएल ओवरऑल कंप्लीट वहां पे हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एसक्यूएल अच्छे से किया हुआ है और आपसे एसक्यूएल के क्वेश्चंस बन रहे हैं पीवाईक्यूज के। अभी अभी पार्ट आया ट्रांजैक्शन का, कि जिसमें आपका कॉन्सेप्ट इतना मतलब क्लियर नहीं था और आपको पीवाईक्यू सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो जब आप ट्रांजैक्शन वाले पार्ट का रिवीजन कर रहे हो, तभी आप उसके पीवाईक्यूज को वापस रिविजिट करो। अभी मतलब वापस सभी पीवाईक्यूज को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपने पहली बार पीवाईक्यूज किए थे उसमें से थोड़े थोड़े पॉइंट आउट करो कि ये पीवाईक्यूज अच्छे हैं, ये हार्ड है, ये मतलब ऐसे कुछ कुछ कैटेगरी बनाओ कि ये हार्ड कैटेगरी में है, ये मतलब अच्छे क्वेश्चंस है, ये मतलब ये तो सिली क्वेश्चंस है, ऐसे करके। तो उसमें से जो अच्छे क्वेश्चंस है, जो हार्ड क्वेश्चंस है, उसको वापस से रिविजिट करो, क्योंकि वहां से भी आपको कई नए नए टॉपिक आपको सीखने को मिलेंगे। तो ऐसे करके जिस भी टॉपिक में आपको पर्सनली लगता है कि इसमें मेरा इतना ग्रिप नहीं है, तो उस टॉपिक में जब आप रिवीजन करो तब उसके पीवाईक्यूज वापस रिविजिट करो। जो भी टॉपिक आपके लिए इजी है उसके पीवाईक्यूज आपको वापस से रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। ओके। ओके ओके। थैंक यू। अगर मैं मेरा बताऊं तो मेरे लिए जो डीएमए वाला पार्ट था सीओए में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो वो हाँ मेरा हाँ। थोड़ा वीक था। तो जब भी मैं रिवीजन करता था तो मैं डीएमए के सारे क्वेश्चन सोल्व करता था। मतलब मैं सारे इसलिए करता था क्योंकि डीएमए के हार्डली लाइक 20-25 क्वेश्चंस हो गए गेट और फ्लो के पीडीएफ में, और जो भी पीवाईक्यूज है उसमें। तो मैं वो तो मैंने अगर मान लो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने डीएमए के क्वेश्चंस सभी पीवाईक्यूज मैंने 3 से 4 बार सोल्व किए हैं, क्योंकि वो मुझे इतना ग्रिप ही नहीं था मुझे वो टॉपिक में। तो मैं जब भी रिवाइज करता था तो मैं उसके सारे पीवाईक्यूज सोल्व करता था। तो मैंने वहां पे जितनी भी मेरी लर्निंग की है वो पीवाईक्यूज के थ्रू ही की है। तो ऐसे भी मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर पॉइंट आपका थोड़ा सा वीक है, या पर्टिकुलर टॉपिक आपका आपका थोड़ा सा वीक वीक है, तो उसको आप पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही आप रिवाइज कर सकते हो। ओके ओके। सो नेक्स्ट वी हैव कुलदीप यादव। हेलो कुलदीप। हेलो। हेलो हेलो। माय वॉइस इज क्लियर। यस यस। सर मैंने भी सी प्रोग्राम ओनली कंप्लीट किया था, तो उसका मैंने वीकली क्यूज अटेम्प्ट किया, तो उससे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ओके। और तो उसके बाद मैंने उसके बाद टाइम वेस्ट किया उस पे, उस मिनट तक वो वहां पे टाइम वेस्ट किया, और उसके बाद मैंने क्वाइट लीव कर दिया उसको, क्योंकि बोर हो रहा था। फिर मैंने ट्राई तो बहुत किया, लेकिन मैंने कहा तुक्का नहीं मारते हैं अभी। ओके। ओके। तो मान लो कि आपने सी लैंग्वेज आपको मतलब अच्छे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे, तो पहले पीवाईक्यूज को विजिट करो। और अगर मान लो कि आपने पीवाईक्यूज नहीं करे, तो मेरा स्ट्रोंगली सजेशन है कि सबसे पहले पीवाईक्यूज करो, क्योंकि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो तो उसके बाद आपका ऐसा फ्लो होना चाहिए, सबसे पहले आप पीवाईक्यूज को कंप्लीट करो। जब भी आपके पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप
कोई भी क्विजीज या टेस्ट सीरीज के लिए जाओ, क्योंकि पीवाईक्यूज सबसे बढ़िया बेस है कोई भी सबको समझने के लिए। अगर आपसे पीवाई हो गए तो फिर आपको टेस्ट सीरीज में इतना हार्ड नहीं लगेगा, और आपको समझ में भी आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए, तो वो आपको पीवाईक्यूज के समझ में आ जाएगा। तो पहले आप कोई भी सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज करो, उसके बाद कोई भी वीकली क्विजीज या टेस्ट सीरीज के लिए जाओ, तो फिर वहां पे मतलब थोड़ा आपको इजी रहेगा। और अगर कंपेयर करें तो पीवाईक्यूज कंपेरेटिवली इजी होते हैं कोई भी क्विजीज के कंपेयर में। कोई भी क्विजीज या वीकली टेस्ट या टेस्ट सीरीज के टॉपिक वाइज सब्जेक्ट कोई भी, उसके कंपेयर से पीवाईक्यूज थोड़े मतलब इजी होते हैं। तो पहले पीवाईक्यूज करो। अगर मान लो कि कोई भी पीवाईक्यूज में आपको दिक्कत आ रही है, तो गेट ओवरफ्लो पे उसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, वहां पे डिस्कशन पूरा पढ़ो, वहां से सब कुछ समझो, और फिर वापस से वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को रिविजिट करो। तो ऐसे करके पीवाई क्यूज को टैकल करोगे तो पीवाई क्यूज को समझ में भी आएगा, और वो टॉपिक भी आपके लिए कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा। फिर आप जा सकते हो कोई भी वीकली क्विज़ेस या टेस्ट सीरीज के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि पहले मान लो कि आपको लग रहा है कि यह टॉपिक मेरा वीक है, तो उसके पीवाई क्यूज देख लो, उसके पीवाई क्यूज हो जाए फिर आप टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हो। ओके कुलदीप। सो नेक्स्ट वी हैव Arpan. He is asking how much hours of video I watch per day. Uh, when I am on my vacation mode, then I almost watch 8 to 9 hours per day. But it depends on subjects. Like in subjects which is suppose theory of computation or algorithm. So in those subjects, I watch some extra hours because those subjects I was feeling like quite interesting for me. So in those subjects, I almost watch 10 to 12 hours per day in my vacation. And whenever I am like I am in college, so at that time don't have enough time to watch those 10 to 12 content or 12 to 10 to 12 hour of content. So at that time I watch uh, 5 to 6 hours of content, and sometimes I skip the colleges. So at that time I can try to watch 10 to 12 hours. So if I calculate average, then it should be 7 to 8 hours per day. Next we have Salman. Salman, I'll unmute you. You can ask your doubt. Salman has doubt. It is necessary to do PYQs right after the subjects, or I can go after the completion of all the subjects. Which one is better? Okay. Uh, Technically, once you complete particular subjects, then you should do the PYQs, because at that time your all the concepts are so fresh. Like मतलब आपने जो भी पढ़ा है वो पूरा का पूरा आपको जस्ट याद ही होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कुछ भूल गए या आपको कुछ याद नहीं है। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट किया तो उसके बाद ही अगर आप पीवाईक्यूज करोगे तो थोड़ा जो पीवाईक्यूज हो गए वो जल्दी हो गए। अगर आपने पूरे के पूरे मतलब सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट होने की राह देखी और फिर वो सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए और उसके बाद अगर आप पीवाईक्यूज के लिए जा रहे हो, तो फिर वो थोड़ा मतलब एट दी एंड वो थोड़ा दिक्कत वाला होगा कि मतलब आपको फिर से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना पड़ेगा, फिर आप पीवाईक्यूज के लिए जा पाओगे। क्योंकि मान लो कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स पहले किया है और आप उसका पीवाईक्यूज आप अभी कर रहे हो, तो उसका लाइक मेजोरिटी चांस है कि उसका आपको कुछ भी नहीं होगा। तो आपको पहले वो रिवीजन करना पड़ेगा, देन यू कैन गो फॉर पीवाईक्यूज। सो बेटर तो यही है कि कोई भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए उसके तुरंत पीवाईक्यूज कर लो, क्योंकि आपका मतलब फ्लो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट, आपको सब कुछ उसका याद ही होगा। तो आप इजीली उसके पीवाईक्यूज को टैकल कर पाओगे। और जब भी आप रिवीजन करो तो
उस वक्त आप थोड़ा मतलब पीवाईक्यूज को विजिट कर लो कि जो भी पीवाईक्यूज आपने मान लो कि कुछ टिक मार्क किए हो कि ये हार्ड है या ये मतलब अच्छे पीवाईक्यूज है, तो ऐसे करके आप वो पीवाईक्यूज रिविजिट कर एट द टाइम ऑफ रिवीजन, एंड देन आफ्टर यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज। आप मेरी पर्सनल मैं मेरी बात करूं तो मैंने ये गलती की थी, मैंने सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट होने का वेट किया था, और और जब मेरे सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे फिर मैंने रिवीजन और पीवाईक्यूज किए थे। बट बट मेरे लिए वो इसलिए वर्क कर गया था क्योंकि मेरे सभी सब्जेक्ट्स इस टाइम पे खत्म हो गए थे जुलाई में। तो मैंने अगस्त से रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज वो सब, वो मेरा फेज शुरू हो गया था, तो मेरे लिए इनफ टाइम था वो सब कुछ मैनेज करने के लिए। बट आपको लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट आपका जो भी कोर्स है वो अक्टूबर या सितंबर में कंप्लीट होगा, तो आप पीवाईक्यूज का वेट मत करो कि मतलब सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद पीवाईक्यूज करो, आप साथ में ही करते जाओ। क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा बर्डन कम होता जाएगा अगर आपको आप पीवाईक्यूज साथ में करते जाओगे। Okay, so next we have Debasis. Debasis, I'll unmute you. You can ask your doubt. Okay, 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 no problem. Debasis has doubt. I just have joined the Go classes for GATE CS and DA. I am in second year. I would like to know what chronology should I follow to study a topic from start to finish. Like when should I attempt the quizzes, PYQs, etc. I am targeting GATE 2028. Okay. So you are targeting, if you are targeting GATE 2028, then I would say you have enough time. Like you can do everything from the Go classes courses. So to learn any topic or to learn any subjects, this should be your ideal flow. First, watch the complete lectures from the courses. अगर हम मान लें कि आप डीबीएमएस पढ़ रहे हो, तो डीबीएमएस के सभी लेक्चर्स देख लो, वहां से पूरा का पूरा मतलब लर्निंग आपका जो हो जाएगा। साथ साथ में आपके पास काफी टाइम है और इनफ टाइम है, तो आप साथ में आपके खुद के नोट्स भी बनाओ, क्योंकि वो मतलब कम दूसरों के नोट्स से कंपेरेटिवली आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो साथ में आपके खुद के नोट्स भी बनाओ। ये सब हो जाए कि आपने पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लिया, उसके नोट्स भी बना लिए, उसके बाद आप उसके पीवाईक्यूज करो। मान लो कि आपने पीवाईक्यूज कर लिया डीबीएमएस के, तो अब आप कोई भी नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए जाओ। बट अभी आपको कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह अभी नहीं देने हैं। जब भी मतलब आपने जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया उसके तुरंत बाद आपको टेस्ट या क्विजेस के लिए नहीं जाना है। आप उसके बाद सिर्फ पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। वंस यू कंप्लीट लाइक ऑलमोस्ट 3 or 4 subjects, then you can go for test series phase. But before going for test series phase, just revise whichever subjects you are you are attempting for test series. Like suppose you are going for engineering mathematics, then revise this subject, revise engineering mathematics, and then go for test topic wise test of that particular subjects. Okay. सो ये मतलब फ्लो होना चाहिए आइडियली अगर आप गेट 2028 को फॉलो कर रहे हो। और जब भी आप सेकंड रिवीजन करो, मान लो कि आपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, और 3-4 महीने बाद या मतलब 3-4 सब्जेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद आप फिर से इस सब्जेक्ट्स को विजिट कर रहे हो, तो उस वक्त आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उस शॉर्ट नोट्स में ट्राई करो कि आप 15-20 पेज में पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लो, एंड देन गो फॉर टेस्ट सीरीज। सो ऐसे करके मतलब पूरा का पूरा कोर्स को आप टैकल कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट वी हैव अदिति। आई थिंक सी इज लेफ्ट, बट anyway, let's take his or doubt.
Her doubt is for the past 2 months, I have been giving weekly quizzes, topic wise tests, and subject wise tests regularly. But despite putting in consistent effort and spreading a lot of time analyzing every test, I am still scoring only a single digit most of the time. I am unable to figure out what I am doing wrong, and is this normal during the preparation phase, or does it indicate that there is something fundamentally wrong with the way I am studying or attempting to test? Okay, first of all, if you are getting some single digit marks and some low marks, then it's like little bit normal, because most of the aspirant most of the aspirant will face these type of phases in his preparation. So if you are getting some low marks, then it's completely fine. But uh, I would say, लाइक मान लो कि आपका ज्यादा टाइम टेस्ट को एनालिस करने में जा रहा है, तो मतलब इसमें तो मतलब आप ऐसा कुछ नया तो नहीं कर पाओगे, बट ट्राई करो कि जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो, मतलब उस पे ही आप अपना ध्यान है, मतलब वो जो भी आपका एनालिसिस वाला टाइम है उसमें ही आप लगाओ। और और कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट के मान लो कि कोई वीडियोस है कि अगर दीपक सर या सचिन सर ने वो टेस्ट को सोल्व कराए है यूट्यूब पे, तो वहां से यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो, क्योंकि वहां से आपको आप टाइम भी सेव हो जाएगा, और क्वेश्चंस को समझना भी वहां पे इजी हो जाएगा। तो वहां से ट्राई करो कि आप टेस्ट को सोल्व कर पाओ। और बट अगर मान लो कि आप कोई भी एक क्वेश्चन पे फंस गए हो, या मतलब आपका ज्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को समझने के लिए, तो पहले तो मतलब आपने लाइक आइडियली आपने GoToEFL पे सब कुछ विजिट तो किया ही होगा, कि ये कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपके आपसे नहीं हो रहा है, तो आपने GoToEFL पे सब कुछ विजिट किया होगा कि ये क्वेश्चंस के अंदर को क्या क्या डिस्कशन हो रखा है, या किसने कैसा आंसर दिया है, वहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मान लो कि वहां से भी नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चंस को अभी एज अ पॉज मोड में रख दो, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, और लाइक सिंपली मूव ऑन कर लो। फिर मान लो कि 2-3 टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद, और मान लो कि अभी आपके पास थोड़ा मतलब टाइम सेव है, या मतलब आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के सभी टेस्ट कवर कर लिए, और आफ्टर कवरिंग ऑल दी टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, लाइक लाइक तभी आपके पास मान लो कि 5-6 ऐसे क्वेश्चंस है कि जिस पे जिस जिस जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आया, और आपने ऐसे ही मूव ऑन कर लिया, तो उस क्वेश्चन को वापस से रिविजिट करो। और अब अगर वापस अभी भी नहीं आ रहा है, तो फिर सिंपली उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि लाइक आप सब कुछ तो सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मैंने भी ऑपरेटिंग सिस्टम और थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में काफी ऐसे पॉइंट थे या काफी ऐसे टॉपिक थे जिसको ऐसे सिंपली इग्नोर ही किए थे, कि मतलब उसको मैंने काफी बार समझने की ट्राई की थी, पर मुझे मतलब वो इतने अच्छे से मेरी ग्रिप नहीं होती थी उसमें, तो मैं कई बार उसको इग्नोर कर देता था। और अगर वो मान लो कि वो सब्जेक्ट्स वो पर्टिकुलर टॉपिक या थियोरिकल टॉपिक है, तो मैं उसको ऐसे ही मतलब मेरी नोट्स में ऐसे पॉइंट आउट कर देता था कि ये मुझे सिर्फ याद रखने हैं। तो मैं उसको मतलब ऐसे बोलते हैं ना, रोट लर्निंग टाइप, तो वो भी मतलब कोई कई बार हो जाता था कि मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको ऐसे ही याद रख लेता हूँ। तो ये मतलब 2-3 चीजें हैं, बट पहले ट्राई करो समझने की। अगर दो तीन बार ट्राई कर 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं समझ आ रहा है, तो मतलब आप थोड़ा सा मतलब उसको याद भी रख सकते हो। ओके। नेक्स्ट वी हैव आर्यन शर्मा। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। सर मैं गेट 2027 की प्रिपेयर कर रहा हूँ और अभी मेरे ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिसमें से एक या दो सब्जेक्ट्स के मैंने PYQ साथ में ही कर लिए हैं। बट एज ऑफ नाउ 50% सिलेबस कंप्लीट है, बट अभी 50% से ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है। तो जैसा कि आपने भी बताया, आप 10 to 12 आवर्स का डेली कंटेंट कंज्यूम करते थे। सो अगर अब मैं लाइक 10 to 12 आवर्स डेली देता हूँ, बिकॉज
आई कैन गिव, क्योंकि मेरे एग्जाम लाइक ये कॉलेज के लास्ट ईयर चल रहा है, तो अटेंडेंस इज नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। तो लाइक अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या मैं 10 to 12 आवर्स दे के सिलेबस को पहले कंप्लीट करूं, एंड अगर कोशिश करूं कि सितंबर तक अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अक्टूबर तक, फिर बाद में पीवाईक्यूज करूं? या फिर क्योंकि अगर 20 to 12 आवर्स अगर हम वीडियोस लेक्चर्स देखते हैं तो पीवाईक्यूज नहीं किए जा सकते साथ में, या फिर अभी साथ में पीवाईक्यूज करूं और सिलेबस थोड़ा फिर डिले कर दूं, मतलब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, सो मान लो कि मतलब जितने भी आपके अभी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, तो उसमें से अभी आप जो भी सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी ज्यादा है, कि मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के वेटेज मान लो 8 या 10 मार्क्स का है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को पहले पिकअप करो। और मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद पीवाईक्यूज करने का मतलब वो पार्ट का है। क्योंकि आइडियली वो नहीं, मान लो कि आपका कोर्स कंप्लीट जरा सा भी डिले हो गया, और मान लो कि आपने पर या स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपने कोर्स कंप्लीट किया, और अब तक आपने कुछ भी ना मतलब आपने कोई भी पीवाईक्यूज नहीं किए या कोई भी ऐसे टेस्ट सीरीज या कुछ नहीं दिए, तो फिर आप लास्ट के 2 महीने में सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वहां पे रिवीजन भी करना होगा, पीवाईक्यूज भी करने होंगे, मॉक टेस्ट भी देनी होगी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी देनी होगी। तो वो काफी मतलब हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए मैनेज करना, और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है वो सब कुछ करना लास्ट के 2 महीने में। तो मेरा सजेशन यही है कि साथ में पीवाईक्यूज करते जाओ। अगर मान लो कि आप 10-12 घंटे का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, तो कंटेंट थोड़ा कम कंज्यूम करो, और वो जो भी टाइम बच रहा है वो आप डेडिकेटेड करो अपने पीवाईक्यूज के लिए। तो अगर मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मैं जब मेरा भी मतलब आपके जैसा सेम ही था, लास्ट लास्ट से में इतना मतलब अटेंडेंस का कुछ नहीं था। तो मैं मतलब कॉलेज का भी मतलब ऑलमोस्ट पूरा टाइम गेट के लिए ही मतलब यूज करता था। तो उस वक्त मैंने थोड़ा मतलब डिवाइड किया था कि मैं 7-8 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करता था, और 1-2 घंटे पीवाईक्यूज के लिए जाता था। तो ऐसे करके मैंने डिवाइड किए थे। बट मेरे लिए पर्सनली ऐसा था कि मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस जुलाई या अगस्त, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त तक मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। हार्डली 1 या 2 टॉपिक मेरे बचे थे। तो उसके लिए फिर मैंने मतलब वेट ही किया था कि मेरा मेरा एक बार सब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ही मैं मतलब पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज के लिए जाऊँ। बट वो पॉसिबल था ओनली बिकॉज कि मेरा जो भी कोर्स है वो जल्दी खत्म हो रहा है। बट अभी आपका मतलब 50% कोर्स आपका बाकी है, तो मेरा मतलब मैं ये सजेशन तो बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप पहले कोर्स कंप्लीट करो और फिर पीवाईक्यूज के लिए जाओ। आपको साथ साथ में पीवाईक्यूज करने चाहिए। मान थोड़ा मतलब मान लो कि आपका टारगेट है अक्टूबर का, कि अक्टूबर तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है, और मान लो कि थोड़ा डिले हो जाए और नवंबर तक आ जाए, तो भी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर आपने साथ में पीवाईक्यूज किए होंगे। तो साथ में पीवाईक्यूज करते जाओ थोड़ा, मतलब अगर कोर्स कंप्लीट होने में डिले हो जाए फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपके पास लास्ट के अगर मान लो कि आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो उसमें आप आराम से रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज कवर कर पाओगे। और टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज को कंप्लीटली कवर करना थोड़ा हार्डली हार्ड होगा, बट आप रिवीजन और मॉक टेस्ट तो आराम से कंप्लीट कर पाओगे लास्ट के 2 मंथ में। सो ओके। ओके। नेक्स्ट वी हैव विरूपक्ति। डाउट इज नोट्स कैसे बनाए, मतलब को क्लासेस एनोटेटेड नोट सफिशिएंट होगा कि खुद के नोट्स से खुद के डिटेल नोट्स बनाए, आपने कैसे किया? बेसिकली मेरे मैंने मेरा जो गेट का प्रिपरेशन था वो मैंने फोर्थ सेम से ही शुरू किया था। तो मेरे पास ऑलमोस्ट दो
साल का टाइम था गेट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके रीजन से, उसके कारण से मैंने जो भी मतलब नोट्स थे वो मैंने मेरे खुद के बनाए थे। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और मान लो कि आप अभी अभी आप 50% कोर्स पे हो, या मतलब कुछ भी मतलब आपका अभी कोर्स बाकी है और सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा और आपका वो एस्टिमेटेड टाइम है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप खुद के नोट्स के लिए मत जाओ, क्योंकि वो मतलब काफी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा आपके लिए। आप कोई भी टॉपर्स के नोट्स या एनोटेटेड नोट्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आप एनोटेटेड नोट्स को फॉलो करके आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझ आ रहा है और वहां से आपको कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, तो मेरा सजेशन यही है कि एनोटेटेड नोट्स को फॉलो करो, क्योंकि वहां पे सब कुछ कवर हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ भी छूट गया या कुछ रह गया, या मतलब कुछ मतलब कोई भी मतलब मान लो कि कोई टॉपर्स की नोट है, तो मतलब उसकी मतलब कितनी भी अच्छी नोट्स होगी, बट सब कुछ तो हार्डली कवर होगा। तो अगर आप एनोटेटेड नोट्स को फॉलो कर रहे हो और वहां से आप वो आपको मतलब वहां से आप अच्छी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एनोटेटेड नोट्स को ही फॉलो करो, क्योंकि वहां से आप सब कुछ कवर कर पाओगे। और जो भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी वहां से आप कवर कर पाओगे। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एनोटेटेड नोट्स के लिए जाओ। बट मान लो कि आपके पास सफिशियंट टाइम है और आप अभी जेट 2028 को टारगेट कर रहे हो, तो आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि मतलब खुद के नोट्स तो 100% आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि मतलब अभी आप मान लो कि आप खुद के नोट्स बना रहे हो, तो आप जो कुछ भी लिखोगे वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिखोगे। तो वो आपको काफी हेल्प करेगा आप चीजों को समझने के लिए और ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करने के लिए। तो अगर टाइम है और आपके पास मतलब अ, आप मतलब हाँ टाइम ही है, तो आप जा सकते हो खुद के नोट्स के लिए। अदरवाइज यू कैन गो फॉर एनोटेटेड नोट्स और एनी टॉपर्स नोट्स। हाउ कैन आई इंक्रीज माई रैंक इन CS एंड TS? सो लाइक मतलब इसका तो मतलब मैं क्या ही आंसर दूं कि मतलब रैंक को कैसे इम्प्रूव करना है। बट बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकनेस और वट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन, यू हैव ऑलरेडी डिड। तो अगर मान लो कि आपने आपका जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट है, जैसे आपने मेंशन किया है कि आपका कुछ 13,000 रैंक है गेट CS में और 8,000 रैंक है गेट TM में, तो आपने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की ही होगी, तभी आपका रैंक है मतलब 13,000 और समवेयर इन थाउजेंड्स। तो वो मिस्टेक्स को फाइंड करो कि क्या गलती थी और क्या मुझे बेहतर करना चाहिए। तो उस पर फोकस करो और उसको ही इम्प्रूव करो। रैंक इम्प्रूव करने का तो यही तरीका है। अगर मान लो कि आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरे मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े वीक है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करो, उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो उसके लिए आपको मतलब आप अच्छे से मतलब फिर से लेक्चर्स देखो। अगर आपके पास लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है, तो एनोटेटेड नोट्स में से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। अगर वहाँ वहां से भी मतलब आपको मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो डायरेक्टली जंप इनटू द पीवाई क्यूज को सोल्व करो और उसमें से मतलब थोड़ा सा सीखने की ट्राई करो। तो ऐसे करके ही मतलब कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट्स को टेकल कर सकते हो, अगर आपको वो सब्जेक्ट्स को आपको इम्प्रूव इम्प्रूव करना है। और रैंक तो मतलब अगर सब्जेक्ट्स इंप्रूव हो गए तो रैंक ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो ही जाए। नेक्स्ट वी हैव देवाशीष, he has some another doubt. Should I follow the schedule planner given by the group of classes, or should I plan my own schedule according to the subjects which lie in intersection with my semester syllabus? uh, Ideally, I would say if you are comfortable with on your plan, then strictly follow your own plan. लाइक मैंने कभी भी कोई भी मतलब अगर मान लो कि कोई गो क्लासेस के करंटली कुछ स्केड्यूल्स डेली आ रहे हैं और वो कुछ प्लानिंग है कि ये वीक में ये करना है, ये वीक में ये करना है, तो मैंने वो कुछ फॉलो नहीं किया था। मैंने मतलब मेरे खुद के बेसिस पे जो कुछ भी स्केड्यूल बनाया था वो मैंने मेरी तरह से ही बनाया था।
तो अगर आप अपने स्केड्यूल पे मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह सकते हो और सब कुछ कवर कर सकते हो, और आपने जो भी टारगेट है उसका एटलीस्ट 70-80% आप अचीव कर पा रहे हो, तो आप अपने स्केड्यूल पे ही स्ट्रिक्ट रहो, उसको ही फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्लानिंग है उसके उसको ही मतलब उसके फ्लो पे ही मतलब करते जाओ सब कुछ। ऐसा मतलब एक्सटर्नली कुछ वो स्केड्यूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जैसे कि आपका फॉलो अप डाउट है कि आपको ऐसे सब्जेक्ट्स टैकल करने चाहिए जो आपके सेमेस्टर के सिलेबस के साथ आ रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को टैकल करना चाहिए, तो मेरा सजेशन यही है कि मान लो कि आपके सेमेस्टर में कोई भी एक्स वाई जेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट्स तो आप मतलब कैसे भी करके मतलब वो आपको कॉलेज पे तो पढ़ना ही होगा, मतलब आप पढ़ेंगे ही, मतलब आपका एग्जाम के लिए या कुछ भी मतलब कॉलेज का जो इंटरनल एग्जाम, तो वहां से आप अगर मान लो कि आप मतलब भी आपका जो कॉलेज का करिकुलम है और वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो अगर मान लो कि अच्छी तरह से कवर हो रहा है, तो वहां से मतलब पहले वो कॉलेज के सब्जेक्ट्स को कवर करो और उसके बेसिस पे पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। अगर आप पीवाईक्यूज को वहां पे सॉल्व कर पा रहे हो और आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, तो फिर आपको कोई भी मतलब तो फिर आपको गो क्लासेस से वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट को वापस से देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप सिर्फ उतना ही देखो जितने में आपका मतलब थोड़ा सा दिक्कत वाला पार्ट है, कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो गया या कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट हो गया कि जिसमें आप वीक हो, तो फिर उसको ही देखो। अगर आप कंप्लीटली ऐसे देख रहे हो कि मुझे कोई भी नया सब्जेक्ट शुरू करना है कि जो मेरे सेमेस्टर के साथ अलाइन हो रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट सब्जेक्ट, बिकॉज लाइक आपको दोनों तरफ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। कि मान लो कि अगर आप आपके करंट सेमेस्टर में डीबीएमएस आ रहा है और आप अभी गो क्लासेस से भी डीबीएमएस कर रहे हो, तो आपको इवेंचुअली वो कॉलेज के लिए भी हेल्प करेगा। और मान लो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल चीजें हैं, मान लो कि ओएस है, डीबीएमएस है, या कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो अगर आपको गो क्लासेस करोगे, तो उसके उसका जो मतलब जो नॉलेज है या फिर वहां से जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, तो वो आपको प्रैक्टिकल लैब्स में भी हेल्प करेंगे। तो yeah, you can definitely go for those subjects which are aligned with your college semester syllabus. So yeah, that's nice. और अगर मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मैंने भी अब 3-4 सब्जेक्ट्स में ये फॉलो किया था कि अगर कोई भी मतलब करंटली कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट को चल रहा है, तो मैं उसको गो क्लासेस से क्योंकि वो इवेंचुअली आपको कॉलेज के एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। तो हाँ, आप वो चाह सकते हो डेफिनेटली। Kuldeep has some follow-up doubt. That is, he has shared some screenshot of PYQs. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू कंफर्म लाइक ये आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो गेट ऑफ के पीडीएफ से शेयर किया है या फिर कोई एक्सटर्नल रिसोर्स से शेयर किया है? ओके ओके। हाँ मतलब अगर आप गेट ओवरफ्लो को फॉलो कर रहे हो पीवाईक्यूज के लिए, तो वहां पे स्ट्रक्चर्ड वे में जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो वैसे ही मतलब टॉपिक वाइज लिस्टेड हो गए, सॉरी टॉपिक वाइज, हाँ टॉपिक वाइज लिस्टेड हो गया पीवाईक्यूज। तो या यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोस पीवाईक्यूज। हाँ आपको, हाँ यही सही करने हैं जो भी आपने, हाँ हाँ, जो भी आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसको आप पहले से सोल्व करते जाओ। और मान लो कि आपको पर्टिकुलर कोई भी एक दो टॉपिक या एक दो कॉन्सेप्ट में ही आपको दिक्कत आ रही है, तो आप उसके भी मतलब पीवाई क्यू सोल्व कर सकते हो। कि मान लो कि आपने पीवाई सी लैंग्वेज के सभी पीवाई क्यूज एक बार कर लिए हैं, और मान लो कि आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में ही आपको दिक्कत आ रही है, तो आप उसके भी पीवाई क्यूज डायरेक्टली उसको ही सोल्व कर सकते हो। हाँ मतलब अगर आप ये सारे पीवाईक्यूज कर लो, उसके बाद आप चाह सकते हो कोई भी
क्विजीज या टेस्ट सीरीज के लिए आइदर इट शुड बी वीकली क्विजीज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और वीकली टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. Next we have Hitesh. हेलो सर। Hello. अ, मेरा वापस एक डाउट था, जनरल डाउट था, लेकिन हाँ. कि जब तक आप मतलब टॉपर नहीं बन जाते, तब तक तो आप किसी और टॉपर को फॉलो करते हो, राइट? आप भी करते होगे शायद, आप जब तक आपकी रैंक नहीं आई थी। तो मतलब किसी भी एस्पायरेंट के लिए अगर आप प्रिपरेशन फेज में हो, तो मतलब क्या माइंडसेट होना चाहिए? और हाँ, बस यही कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि टॉपर बनने के लिए। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो हमारी एग्जाम थी 7 फरवरी या 8 फरवरी को टेस्ट ईयर. तो मतलब एग्जाम के पहले दिन तक मुझे यही लगता था कि लाइक एटलीस्ट मेरी 400-500 रैंक आ जाए तो मुझे कोई भी मतलब अच्छी आईआईटीज मिल जाए. तो पहले से तो किसी को कुछ भी मतलब ऐसा फील नहीं होता था कि मैं टॉपर हूँ या मेरे इतना रैंक आएगा या मैं मुझे ये आईआईटी ये कॉलेज वगैरह मिल जाएगा. तो या डेफिनेटली आपको वो कुछ तो पहले से पता नहीं होगा या आपको वो कुछ आपका ऐसा नहीं होगा कि मैं ही टॉपर हूँ या मेरा ही रैंक आएगा या मुझे इतने मार्क तो आ ही जाएंगे. तो वो कुछ आपको माइंड में नहीं रखना है. बट माइंडसेट प्रिपरेशन के टाइम इतना इतना होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो वो कुछ मतलब गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है. अगर मान लो कि आप कंटिन्यूअसली सिर्फ लेक्चर ही देखे जा रहे हो, लेक्चर देखे जा रहे हो और कुछ प्रैक्टिस के रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे हो, पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हो या कुछ टेस्ट सीरीज के लिए नहीं जा रहे हो, तो कोई भी मतलब मान लो कि आपके टच में कोई सीनियर्स है. जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे मेरी पूरी की पूरी जर्नी में मैं 2-3 सीनियर्स के टच में थे, तो टच में था जिसका मतलब काफी अच्छा रैंक आया. तो वो मुझे कंटिन्यूअसली गाइड करते थे कि मतलब मैं उसको पूछता रहता था कि मतलब मैंने ये इतना कर लिया तो मैं मतलब सही ट्रैक पे तो हूँ. तो ये एक माइंडसेट होना चाहिए कि आप ऐसा मतलब आप देखते रहो कि आप जो भी कर रहे हो वो सही ट्रैक पे तो है. तो वो एक माइंडसेट रखना है. और एक दूसरा एक मोस्टली जो अगर मैं पर्सनली फील करता हूँ कि काफी एस्पिरेंट में मतलब मिसिंग है वो सभी चीजों को मार्क्स के बेसिस पे देखते हैं. कि कोई भी टेस्ट सीरीज के लिए वो गए और आप कोई भी टॉपिक को इस टेस्ट को अटेंड किया, तो मान लो कि उसमें उसको मतलब कुछ भी मार्क आए, मान लो कि 25 मार्क की टेस्ट है और 25 में से 25 आए, या फिर 25 मार्क की टेस्ट है और 5 या 10 मार्क आए, तो वो लोग सभी चीजों को मार्क्स के अकॉर्डिंग ही देखेंगे. बट मेरा मेरा मेरी प्रिपरेशन प्रिपरेशन के टाइम पे भी यही माइंडसेट था कि मैं टेस्ट एटलीस्ट टेस्ट के टाइम मार्क्स को थोड़े मतलब पिक्चर्स के बाहर रखता था. क्योंकि मान लो कि मेरे 25 में से 8 या 10 मार्क आए, तो मैं अपने आप को लकी समझता था कि मुझे वो टेस्ट को डिटेल में एनालिसिस करने का मौका मिला. अगर मान लो कि मुझे 25 में से 25 मार्क आ गए वो टॉपिक में, मान वो टॉपिक में अगर 25 में से 25 मार्क आ गए, तो वो टॉपिक मेरा मतलब एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स वो मेरा स्ट्रोंग ही होगा. बट कितना भी स्ट्रोंग हो, कभी वो टॉपिक आपका कंप्लीट तो नहीं होगा. कि आप ऐसे कभी भी नहीं कह सकते कि ये टॉपिक मेरा सबसे अच्छा है, आप इसमें से मुझे कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दो मैं उसको सोल्व कर पाऊंगा, कर दूंगा. तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं. तो अगर मान लो कि मुझे कोई भी टॉपिक में 25 में से 25 मार्क आ गए, तो फिर मैं ज्यादा चांस है कि वो टॉपिक को फिर से कभी देखूंगा ही नहीं. क्योंकि वो मुझे वो एक कॉन्फिडेंस रहता था कि ये मुझे तो आता ही है, उसमें मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ऐसे करके वो टॉपिक को मैं इग्नोर कर देता. ऐसा एक अगर मैं टॉपिक बताऊं तो कंपाइलर डिजाइन में मेरा मतलब 1 या 2 टेस्ट में मेरे 25 में से 25 आ गए थे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था. तो मैं मतलब इतना ओवर एक्साइटेड हो गया था, इतना मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये टॉपिक में तो मतलब लाइक वो होता है कि मैं ही राजा हूँ, इसमें तो मुझे सब कुछ आता है, कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे दूं वो तो मैं सोल्व कर ही दूँ. तो जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो वही टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे से नहीं होते थे. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि
सबसे मतलब मान लो कि 25 में से 25 मार्क आ गए तो वो तो ऑलमोस्ट खराब बात है, क्योंकि आप वो टेस्ट को आप कभी रिविजिट करोगे ही नहीं, कि मतलब वो टेस्ट का आप कभी भी एनालिसिस नहीं करोगे। तो मेरा तब से मतलब मेरा माइंडसेट यही शिफ्ट हो गया कि किसी को भी मतलब किसी भी टेस्ट को मार्क्स के बेसिस पे नहीं देखना है, कितने भी मार्क्स आए उसको वापस से रिविजिट रिविजिट करना है, वो टॉपिक को वापस से रिवाइज करना है, उसको वापस से सोल्व करना है। तो ऐसे करके मैं टैकल करना करता था, तो उसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि कोई भी टेस्ट में मान लो कि मेरे कम मार्क आए, तो मैं उस वक्त इतना डिसअपॉइंटेड नहीं होता था कि क्यों कम मार्क आए, या मतलब मैंने जो कुछ भी पढ़ा था उसका क्या फायदा हुआ। तो वो कुछ मेरे मन में नहीं रहता था, सिर्फ इतना ही माइंडसेट था कि कम मार्क आए तो क्यों आए वो फाइंड करना है, और फिर उसको जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए उसको फिर मुझे अच्छे से सोल्व करना है। तो वो मेरा मेनली माइंडसेट रहता था टेस्ट सीरीज के लिए। ओके रितेश। यस यस सर। और और एक बात, अ, मतलब जब आपने क्या आपको ऐसा पॉइंट लगा अपने प्रिपरेशन में कि ये अब इनफ हो गया रैंक लाने के लिए, कि लगभग ये इनफ तो कुछ भी नहीं होता लास्ट के दिन तक भी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि मेरी प्रिपरेशन अब हो गई है, कि मैं अब निकाल सकता हूँ रैंक, ऐसा? हाँ, जब भी एआईएमटी शुरू हुए थे और दिसंबर के बाद, मिड दिसंबर के बाद, तभी मैंने एक या दो एआईएमटीज में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे, 70 या 75 के अराउंड। और उस वक्त तो एआईएमटी में रैंकिंग भी आती है, अगर आपने कभी भी मतलब आपने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में एआईएमटीज दी है, तो उसमें आप जो जितने भी लोग गो क्लासेस के प्लेटफॉर्म में एआईएमटी देते हैं, तो उसमें से रैंकिंग आती थी कि 4,000 या 3,000 लोगों में से आपकी रैंक क्या है। तो उस वक्त मेरी दो तीन एएमटीज में मेरी रैंक थी मतलब 40, 44, 50 के आसपास। तो उस वक्त मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस उस वक्त आ गया था कि नहीं मतलब कुछ तो बेटर रैंक मेरी आ जाएगी। तो वहां से मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो था कि मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे अंडर 300 या अंडर 200 तो मुझे लाना ही है। बट कभी भी मतलब ऐसा श्योर नहीं था कि मतलब मेरा ये रैंक तो आ ही जाएगा, या 400 या 500 या 300 रैंक तो आ ही जाएगा। बट इवेंचुअली मतलब जो भी मेरा टारगेट था उसके उससे तो मेरा काफी मतलब बेटर रैंक आया। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव प्रणय, he has some doubt. I am currently in third year and preparing for my first attempt for GATE, and I am having difficulty in understanding how to do revision. I have completed DBMS, programming in DBMS, computer network, and then POC, and currently doing engineering mathematics and discrete mathematics. Okay, so since you are in third year, so you have almost 1.5 year for your final GATE attempt. So I would suggest if you are facing some difficulty in revision, then again, like as I discussed earlier, you can go for short notes, because that's the one of the best way to improve your revision. Because like रिवीजन फेज एक ऐसा फेज है जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन में सबसे बोरिंग फेज है। अगर मान लो आप लिख रहे हो वो फेज हो गया, आप टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज के लिए जा रहे हो वो एक टेस्ट होगा, आप लास्ट में मॉक टेस्ट के लिए जा रहे हो वो एक फेज हो गया, और एक रिवीजन फेज। तो ये सभी फेज में से सबसे बोरिंग फेज है रिवीजन। तो उसको मतलब थोड़ा मतलब ऐसे कंफर्टेबल बनाना है रिवीजन फेज, तो उसका एक दो ही मतलब तरीका है कि आप अपने पूरे का पूरी नोट्स में से रिवाइज करना बंद कर दो। कि मान लो कि आप अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, या फिर आप अनअटेंडेड नोट्स को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप कोई भी टॉपर्स के नोट्स को फॉलो कर रहे हो, तो सभी नोट्स को रिवाइज करना बंद कर दो, क्योंकि वो काफी बोरिंग होगा कि मान लो कि आपने अपने खुद के 200-300 पेज के नोट बनाए हैं और वो आप पूरा पूरा रिवाइज कर रहे हो हर बार, तो वो काफी हेक्टिक हो जाएगा और काफी बोरिंग हो जाएगा। तो
शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। ट्राई करो कि 15-20 पेज में आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर कर पाओ। फिर हर टाइम शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करो और थोड़े थोड़े अपने फुल नोट्स को भी रिवाइज करो। तो वहां से आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें मिलती जाएगी कि जो आपके शॉर्ट नोट्स में मिसिंग होगी। तो ऐसे करके अपने शॉर्ट नोट्स को इम्प्रूव करो। तो इससे आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा और आप इतना मतलब बोरिंग फील भी नहीं करोगे। तो अगर आप रिवीजन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यही तरीका है। शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें से रिवीजन करो। और अगर आप कंफर्टेबल हो पीवाईक्यूज के साथ, मतलब पीवाईक्यूज के साथ रिवीजन करने में कंफर्टेबल हो, तो आप पीवाईक्यूज के साथ भी जा सकते हो। बट वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सभी पीवाईक्यूज नहीं करने हैं या फिर सभी क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आपको मान लो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में 20 क्वेश्चंस है, तो आप कोई भी मतलब 6-7 क्वेश्चंस कर लो जो कवर कर दे पूरा का पूरा टॉपिक। तो ऐसे करके भी रिवीजन किया जा सकता है। बट अगर मैं मैं मेरी पर्सनल सजेशन दूं तो आप शॉर्ट नोट्स के लिए जाओ, शॉर्ट नोट्स से ही रिवीजन करो, एंड देन यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट वी हैव मृणालिनी। Hello, am I audible? Yes, yes. Okay, so I wanted to ask like you're talking about short notes. So short notes कितने pages के होने चाहिए per subject for DA on and around like because मैंने अभी मॉड्यूल 1 करा है एलए का एंड उसका शॉर्ट नोट मॉड्यूल 1 का मेरे इट्स लाइक अराउंड 6 pages फ्रंट एंड बैक सो लाइक हाउ ओके, सो शॉर्ट नोट्स मतलब अ, आप आपके इतने ज्यादा भी नहीं होने चाहिए कि मतलब 25, 30 या 40 पेज के शॉर्ट नोट्स हो जाए। तो उतने भी मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आप गेट डीए की बात कर रहे हो तो आइडियली उसमें शॉर्ट नोट्स की लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें लाइक मोस्टली जो, अगर आप लिनियर अलजेब्रा या प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो तो उसमें काफी फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हो गए या फिर कुछ कुछ डेफिनेशन बेस्ड या कैसे मतलब। तो वहां से आपके शॉर्ट नोट्स की लेंथ शायद बढ़ सकती। तो मतलब आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि आपकी शॉर्ट नोट्स 6 पेज, 11 पेज की है, 12 पेज की है या 20 पेज की है। आपको फोकस करना है कि आपने पेज की नोट शॉर्ट नोट्स बनाई है, उसमें सारा सब्जेक्ट्स कवर होना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स तो काफी ज्यादा पेजेस की थी, 50-60 पेजेस की। बट वो सब्जेक्ट्स भी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा थे। तो अगर मान लो कि इतने बड़े सब्जेक्ट्स, इतने बड़े शॉर्ट नोट्स बन रहे तो भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको इतना इंश्योर करना है कि आप जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितने भी साइज की शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स कवर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट्स की कुछ भी चीजें छूट रही है तो फिर आप हर बार वो चीज को इग्नोर करोगे और ज्यादा चांस है कि उसमें से क्वेश्चंस आ जाए। अगर मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो डीबीएमएस में एक टॉपिक है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रिलेटेड समथिंग, मतलब ऐसा कुछ टॉपिक है। अभी तो मतलब मुझे याद नहीं है पूरा का पूरा टाइटल, बट ऐसा डेटा इंडिपेंडेंस या फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रिलेटेड कुछ टॉपिक है। तो वो मैंने मेरी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड नहीं किया था। तो हर बार वो टॉपिक को मैं इग्नोर ही करता था। बट वो मुझे पता ही नहीं था कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। मुझे तो यही लगता था कि मेरी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है और मैं लाइक जो भी मतलब रिवाइज कर रहा हूँ उसमें से पूरा डीबीएमएस कवर हो रहा है। लेकिन वो टॉपिक मेरा एक छूट गया था और उसी में से क्वेश्चन आया था मेरा गेट सीएस के पेपर में। तो वो एक गलती आपको नहीं करनी है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ तो कुछ भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। भले शॉर्ट नोट्स की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाए, बट जितने भी ज्यादा हो जाए, मेन आपकी जो फुल नोट्स है उसके तो उससे कंपेयर में तो कम ही होगी। तो आप नंबर ऑफ पेजेस पे फोकस मत करो, फोकस ये करो कि आपका पूरा का पूरा कंटेंट कवर हो जाए। ओके एंड लाइक आपका डीए का सिलेबस कब तक कवर हो गया था सो यू स्टार्टेड टेस्ट सीरीज एंड ऑल अ, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने डीए का ऐसे एक्सप्लिसिटली कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। हम्म मोस्टली मैंने सीएस का ही पेपर प्रिपेयर किया था और डीए का पेपर मैंने सीएस के नॉलेज के बेस्ड ही दिया था।
बट मैंने हमारी कॉलेज के एग्जाम के लिए मैंने मशीन लर्निंग गो क्लासेस में से पूरे का पूरा स्टडी किया था। तो वो मुझे थोड़ा मतलब हेल्प किया था मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इन गेट डीए पेपर। तो तो उसके बेसिस पे ही मैंने गेट डीए का दिया था। मतलब गेट डीए के लिए मैंने कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ओके, नहीं दिए थे, और पीवाईक्यूज भी मैंने सोल्व नहीं किया था। तो और आपका और सीएस का कब तक है? सीएस का मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था बाय द स्टार्टिंग ऑफ अगस्त। सो वहां से मैंने रिवीजन और पीवाईक्यूज वगैरह मैंने शुरू कर दिए थे। और रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज प्लस टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वो मेरे खत्म हुए थे दिसंबर के फर्स्ट वीक में। एंड देन आफ्टर आई मूव टू द मॉक टेस्ट। Mm-hmm. Sure. Thank you, Rich. That was helpful. I'll plan accordingly. यस यस, Yeah. बेस्ट। ओके, सो I think all the doubts are covered up. Anyone have any follow-up doubt? Mrunalini, Kuldeep, Pranay, Hitesh. Okay, so like I can ask one more question. Yes, yes, definitely. आपने जैसे कहा कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हो गया था ऑलमोस्ट, लाइक बट एल इज लाइक एवरी सब्जेक्ट, मतलब सीएस में इट्स लाइक ऑल सब्जेक्ट्स यू नीड टू कवर, और वो डेप्थ में कुछ ही सब्जेक्ट्स आते हैं। बट डीए इज लाइक हर सब्जेक्ट को डेप्थ में करना है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है। तो लाइक हाउ आई वाज प्लानिंग वाज लाइक अराउंड जुल अगस्त एंड तक मेरा कवर अप हो रहा है। सो इज दैट अ राइट टाइम? लाइक अच्छे से हो जाएगा, बट एज यू स्टेड अगस्त स्टार्ट तक होना चाहिए। सो अगर पर्टिकुलर गेट टीए की बात करें तो गेट टीए का सिलेबस आपका मान लो कि सितंबर के एंड तक भी कंप्लीट हो जाए तो भी आपके पास इनफ टाइम रहेगा पूरे का पूरा टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करने के लिए। तो अगर आप गेट टीए की बात कर रहे हो तो आपको कुछ भी मतलब ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको अगस्त के एंड तक या अगस्त के पहले वीक तक आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट क्लियर कंप्लीट करना है। आपका टारगेट ये रखो कि आप सितंबर के एंड तक आप अपना सिलेबस कवर करो। उसके बाद भी आपके पास एटलीस्ट 4 महीने रहेंगे या 3 महीने रहेंगे। उसमें आप आराम से पीवाईक्यूज कर पाओगे, आराम से आप टेस्ट सीरीज के लिए जा सकोगे, पीवाई रिवीजन करोगे और मॉक टेस्ट करोगे। और अगर थोड़ा मतलब आपको ऐसा डाउट है तो साथ साथ में पीवाईक्यूज करते जाओ। तो आपका जो भी कोर्स है वो मे बी आपका अक्टूबर के पहले वीक या दूसरे वीक में खत्म हो जाए तो भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आपके पास इनफ टाइम रहेगा टेस्ट सीरीज और रिवीजन के लिए। ओके, श्योर, थैंक यू सो मच। ओके। प्रणय का डाउट है कि हाँ सेम डाउट कि मतलब गेट सीएस का सिलेबस आपको कम तक कंप्लीट करना चाहिए। अगर मैं कंफर्टेबल टाइम बताऊं कि अ, अगर आप अक्टूबर स्टार्टिंग या मिड अक्टूबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो सब कुछ कवर करने के लिए। सब कुछ मतलब टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट और रिवीजन। बट अगर मान लो कि आपने साथ में पीवाईक्यूज नहीं की है अपने प्रिपरेशन के टाइम, और अगर मान लो कि आप अक्टूबर में आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो फिर पहले तो आपको पीवाईक्यूज करने वो। अगर मान लो कि आपने कुछ सब्जेक्ट के किए हैं कुछ सब्जेक्ट के नहीं किए तो वो भी एटलीस्ट 30-40 दिन तो आपके पीवाईक्यूज को कंप्लीट करने में लगेंगे। तो वो काफी ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम करेगा पीवाईक्यूज को कंप्लीट करने में। फिर आप रिवीजन के लिए जाओगे, फिर आप टेस्ट के लिए जाओगे, फिर आप मॉक टेस्ट के लिए जाओगे। तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो अगर आप पीवाईक्यू साथ में कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ एंड और आप आपका सिलेबस आपका अक्टूबर में खत्म हो रहा है तो आप काफी बेस्ट पोजीशन में हो। आपके पास इनफ टाइम है रिवीजन के लिए, आपके पास इनफ टाइम है टेस्ट टेस्ट को यूटिलाइज करने के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि साथ में पीवाईक्यूज करते जाओ और ट्राई करो कि आपका सिलेबस अक्टूबर तक खत्म होना चाहिए और मे बी मिड अक्टूबर। Okay, so I think
we have covered all the doubt. And okay, Ritesh has some follow-up doubt. I am referring your recently uploaded notes for revision, and those are very helpful. Can you tell when will you upload notes of C and DS? Uh, Sorry, but I will not upload notes for C language and data structures because लाइक मैंने सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर्स के नोट्स गो क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं बनाए हैं। मैंने वो मतलब मेरी जब मैंने कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स कवर अप होता था तो मैंने उसके बेसिस पे नोट्स बनाए हैं। तो वो थोड़ा मतलब गो क्लासेस के लेक्चर्स के साथ वाला ही नहीं है। और अगर मैं वो अपलोड करूंगा तो आप थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप गो क्लासेस के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो। तो उस इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं किए हैं। बट मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स है जिसका जिसका रैंक अच्छा है और अगर उस उन्होंने सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर्स के नोट गो क्लासेस के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने नोट्स अपलोड कर दे। Hi, Rich. I had one more follow-up question. यस यस यस। Like this, I have taken Go classes, test series, and complete course. So this is enough for GATE, right? I need not go for any other resource. Yes, yes, definitely. If you are utilizing the complete test series of Go classes Hmm. from test one to whichever the last test, then it is more than enough for GATE paper. Either it is GATE DA or either it is GATE CS. Okay. So if you are utilizing the complete test series of Go classes and whichever the lectures provided by Go classes, then it is more than enough to take any paper. Okay. Okay, thank you so much. Okay. Okay. Okay, Ritesh, thank you for your reviews on my notes. Okay, so anyone have any follow-up doubts? Kuldeep, Pranalini, Pranay, Ritesh. So we can end this session here. Okay, okay. Okay, so all the best everyone for your GATE attempt, and let's end the session here. Okay, bye.